बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादक़ैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamu alaikum, my dear students of class 3. How are you all? I hope you all are fine and doing well. By the grace of Allah, I am your English teacher. Okay students, so in our previous class, we were doing the revision of the unit number 14, post box number. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अपनी प्रीवियस क्लास में हम यूनिट नंबर 14 पोस्ट बॉक्स नंबर का रिवीजन कर रहे थे. सो वी हैव डन द रीडिंग ऑफ आवर यूनिट एंड वी हैव मेड द टाइटल पेज एंड वी हैव रीड एंड रिटन द डिक्टेशन लिस्ट ऑफ आवर यूनिट पोस्ट बॉक्स नंबर. तो हम लोगों ने अपने यूनिट नंबर 14 पोस्ट बॉक्स नंबर की रीडिंग कर ली थी, उसका टाइटल पेज बना लिया था और डिक्टेशन लिस्ट रीड भी कर ली थी और लिख भी ली थी. सो टुडे वी विल डू द रिमेनिंग वर्क ऑफ आवर यूनिट पोस्ट बॉक्स नंबर. तो अपनी आज की क्लास में हम यूनिट नंबर 14 पोस्ट बॉक्स नंबर का रिमेनिंग वर्क करेंगे. ओके, नाउ टेक आउट योर वर्ड्स मीनिंग लिस्ट. Unit number 14 post box number. So you have to read this words meaning list with me, then you have to write. Number first word is apply. APPLY, apply. The English meaning of apply is to make a formal request. Repeat after me. To make a formal request. The Urdu meaning of apply is किसी चीज़ की दरख्वास्त करना. Repeat after me. किसी चीज़ की दरख्वास्त करना. The second word is conduct. The second word is conduct. 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 The English meaning of conduct is to carry out or control. To carry out or control. And the Urdu meaning of conduct is ikhtiyar karna. Repeat after me. Ikhtiyar karna. Number third word is crescent. 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 And the English meaning of crescent is semicircular or curved moon. And the Urdu meaning of crescent is hilal. Number fourth word is deliver. Repeat after me. DELIVER. Deliver. The English meaning of deliver is to take or carry to a place or person. Repeat after me. To take or carry to a place or person. And the Urdu meaning of deliver is किसी जगह पहुँचाना. Repeat after me. किसी जगह पहुँचाना. Number fifth word is interrupted. Repeat after me. INTERRUPTED. Interrupted. English meaning of interrupted is to break into a conversation, etc. Repeat after me. To break into a conversation, etc. Urdu meaning of interrupted is मदाखलत करना. मदाखलत करना. Number sixth word is peon. 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 And the English meaning of peon is an attendant. An attendant. And the Urdu meaning of peon is chaprasi. Chaprasi.
Now take out your English text copy. Now make the index. First of all, mention here today's date. Write here unit, post box number, revision. Words meaning, question answer. So now you have to write words, their English meaning and their Urdu meaning. तो बेटा आपको यहाँ पे वर्ड्स और उनकी इंग्लिश मीनिंग एंड उनकी उर्दू मीनिंग लिखनी है, जो कि अभी हमने पोस्ट बॉक्स नंबर की वर्ड्स मीनिंग की लिस्ट में पढ़े हैं. So now you have to make 3 columns. On the first column you have to mention the heading of words. On the second column you have to mention the heading of English meaning. And on the third column you have to mention the heading of Urdu meaning. तो अब आपको 3 columns बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम में आप वर्ड्स की हेडिंग मेंशन करेंगे, सेकंड कॉलम में आप इंग्लिश मीनिंग की हेडिंग मेंशन करेंगे एंड थर्ड कॉलम में आप उर्दू मीनिंग की हेडिंग मेंशन करेंगे. Now open a new page. Mention here today's date. Mention the heading of question answers in the center. Write question number 1. What was Mr. Broadbent's problem? Question mark. मिस्टर ब्रॉडबैंड की क्या प्रॉब्लम थी, उनके साथ क्या मसला था. नाउ राइट आंसर. Mr. Broadbent's problem was that there were too many people with the name George, in his town and their mail was always getting mixed up. Full stop. मिस्टर ब्रॉडबैंड का ये मसला था, उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका नेम था जॉर्ज, और इस वजह से वहाँ पे जो लोग थे उनके जो मेल्स थे वो हमेशा आपस में मिक्सड अप हो जाया करते थे, और मिक्सड अप होने की वजह से सही पर्सन का मेल सही पर्सन तक नहीं पहुंचता था, बल्कि उनके मेल्स आपस में एक दूसरे को चले जाया करते थे. तो इस वजह से मिस्टर ब्रॉडबैंड जो थे वो बहुत ही परेशान रहते थे. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट हियर the B of Broadman and the G of George will be capital. तो यहाँ पे हम जो ब्रॉडमैन का B है वो कैपिटल बनाएंगे और जॉर्ज का जो G है वो भी कैपिटल बनाएंगे, बिकॉज दीज बोथ नेम्स आर प्रॉपर नाउन्स, क्योंकि ये दोनों नेम्स प्रॉपर नाउन्स हैं. एंड व्हेन एवर वी राइट प्रॉपर नाउन्स means whenever we write a name of a particular person we always begin with a capital letter. और जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन लिखते हैं, तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज अ पोस्ट बॉक्स नंबर? क्वेश्चन मार्क. पोस्ट बॉक्स नंबर क्या होता है? नाउ राइट द आंसर. A post box number is actually a number of a letter box allotted to a person by post office where all his mail is delivered. Full stop. तो पोस्ट बॉक्स नंबर उस लेटर बॉक्स का नंबर होता है जो कि किसी भी पर्सन को पोस्ट ऑफिस की तरफ से दिया जाता है और जहाँ पे उसके सारे मेल डिलीवर किए जाते हैं, तो उसे हम पोस्ट बॉक्स नंबर कहते हैं. Now write the question number 3. Where did the postmaster send the key? Question mark. तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने जो की थी वो कहाँ भेज दी थी, कहाँ सेंड कर दी थी. सो नाउ राइट द आंसर. द पोस्ट मास्टर हैड सेंड द की टू मिस्टर ब्रॉडमैन्स पोस्ट बॉक्स नंबर. फुल स्टॉप. So as we have already learned in the reading of unit post box number that, और जैसा कि हम लोग पहले ही अपने यूनिट पोस्ट बॉक्स नंबर की रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने मिस्टर ब्रॉडमैन को उनकी की उनके पोस्ट बॉक्स नंबर पे सेंड कर दी थी. Okay students, so now we have written all the question answers of unit post box number.
तो अब हमने अपने तमाम क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए हैं अपने यूनिट पोस्ट बॉक्स नंबर के। एंड व्हेन वी आर राइटिंग द क्वेश्चन आंसर्स, रिमेंबर वन थिंग दैट, और हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं तो एक बात आपको याद रखनी है, व्हेन एवर वी राइट क्वेश्चन आंसर वी ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर, कि जब भी हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो हम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क, और हर एक क्वेश्चन के एंड में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ ईच आंसर, और हर एक आंसर के एंड में वी विल पुट अ फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप पुट करेंगे। फुल स्टॉप मीन्स at the end of each answer we will put a little dot on the third line, and you have to learn all these question answers too, और आपको ये तमाम question answers याद भी करने हैं। Okay students, so this is your today's work and you have to do your work very neatly and in very good handwriting। तो ये आपका आज का वर्क है और आपको अपना वर्क बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में करना है। यू हैव टू राइट ईच वर्ड आफ्टर गिविंग 1 फिंगर डिस्टेंस, आपको हर एक वर्ड 1 फिंगर का डिस्टेंस देने के बाद लिखना है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ माई स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड कीप हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।